Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, I'm going to discuss with you all about SEBI Grade A Legal Officer Exam Preparation. मैंने एक recently series start की है SEBI Grade A Legal Officer Examination Preparation के लिए 5 must do topics हर एक सब्जेक्ट से मैं आपके साथ वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रही हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कंपनी लॉ, ये सारे वास्ट टॉपिक्स हैं जिनके द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स मैं आपके साथ हर एक वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ. इस वीडियो में हम लोग सिक्योरिटीज़ लॉ की बात करने वाले हैं. सिक्योरिटीज़ लॉ भी बहुत वास्ट है, सो डू वॉच द वीडियो एंड टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दीज इनसाइट्स दैट वी आर गिविंग यू इन दीज वीडियोज़. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड. अगर आपके कोई वीडियोस मिस हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो राइट टू अस डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. यू कैन राइट टू अस एट hello@iexamb.com. कॉल ऑन दिस नंबर डायरेक्टली एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व. इस वेबसाइट पर विजिट करके भी सारे अवेलेबल कोर्सेज एंड ऑफर्स एंड डेमो कोर्सेज यू कैन चेक आउट, यू कैन एक्टिवेट. सो लेट अस स्टार्ट. SEBI is a financial body, that is a regulatory body, and SEBI के जो SEBI का जो एक्ट है, that is securities law जो है, that is very very important for this examination. Questions are asked from this. So the most important topics जहाँ से actually questions पूछे जाते हैं, that we are going to discuss in this video. अगर आपको SEBI में law officer बनना है and अपना dream achieve करना है, so you have to definitely go through the most important and expected topics first. Priority study is the key for preparation on any exams, any of the competitive exams. So SEBI के लिए भी ये applicable है. So सारे regulatory bodies के exams हो, हम SEBI की बात करने वाले हैं इसमें specifically because ये securities law के बारे में हम बात कर रहे हैं. We are discussing about that. So the most important topics, you may note them down. Exam pattern, I will quickly revise it. You have paper 1 and paper 2 in both phases. Phase 1 you have first paper, which is general, that is for all streams it is the same, and there is only MCQ pattern only. Legal का paper है 2 for you. Paper 2 is legal and that is also having MCQs only. You will be having a duration of 40 minutes for legal, and general you will have a duration of 60 minutes. 100 marks के questions होंगे and cut off aggregate will be 40%. एग्रीगेट कट ऑफ भी है एंड पेपर वाइज भी कट ऑफ है. पेपर 1 का 30% है, पेपर 2 का 40% है. This is only qualifying in nature. Once you qualify phase 1, then phase 2 you have to score well so that you can qualify and be selected actually in the final selection list, merit list में. बट पेपर 1 यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश का, टू चेक योर ड्राफ्टिंग स्किल्स, टू चेक योर इंग्लिश, योर राइटिंग स्किल्स, एवरीथिंग. एंड पेपर 2 अगेन इज लीगल एंड अगेन you will have MCQ based paper only for legal, and the aggregate cutoff remains 40% here as well. अगर हम सिलेबस देखें, फेज़ 1 का जो सिलेबस है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है. इन दैट वी आर गोइंग टू सी पॉइंट नंबर 13, दैट इज सिक्योरिटीज़ लॉ. सिक्योरिटीज़ लॉ में आपको SEBI एक्ट है 1992, रेगुलेशंस है 1956 एंड डिपॉजिटरीज एक्ट है 1996. इसका वेटेज फेज़ 2 में थोड़ा सा बढ़ जाएगा. दिस विल इंक्रीज टू 20%. फेज़ 2 का सिलेबस भी आप चेकआउट कर सकते हो. SEBI हैज एक्सक्लूसिवली डिक्लेयर्ड द सिलेबस with chapters and parts. You can see कंपनी एक्ट के चैप्टर्स दिए हुए हैं, क्रिमिनल लॉ के चैप्टर्स दिए गए हैं, देन आर्बिट्रेशन का सिर्फ पार्ट 1 है. ये फेज़ 1 का सिलेबस. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. सो लाइक दिस एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड विद वेटेजेस. नाउ categorization of the 5 must do topics from securities law. Regulations as such are not very very important. That's why I have eliminated it from the 5 must do topics. See, you have to do these topics on a priority. These are the list of 5 topics that I'm giving you. ये सबसे ज़्यादा important part है और आपको यहाँ पर topic wise जाना है. ये दूसरी एक important बात है. Regulations the most important में नहीं आता है. क्या आता है, दैट इज SEBI एक्ट 1992 एंड डिपॉजिटरीज एक्ट. SEBI एक्ट की अगर हम पहले बात करें, सो फ्रॉम दैट यू हैव टू डू द टॉपिक ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. नाउ व्हाट एम आई टेलिंग यू, द टेक्निक ऑफ स्टडिंग दीज लॉज इज यू गो टॉपिक वाइज. इफ यू विल गो टॉपिक वाइज, you can cover all the important provisions from that topic. Even if those provisions are scattered in different chapters, you can collect only the relevant provisions of that topic.
For example, relating to establishment of SEBI. You can collect all the information that you have relating to establishment of SEBI in one topic and do it nicely. This is the smartest way to study for any competitive exam. Then powers of SEBI. Powers of SEBI is very important. You should know, understand, and have conceptual clarity on it. The next, the most important topic I would say is Securities Appellate Tribunal. यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी चेकआउट करो एंड उसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व भी कर सकते हो. iExamB is giving you all the mock tests free. So do visit the website and check it out. Take benefit of all the things that you are having. Securities Appellate Tribunal related questions are asked, so do it thoroughly. स्पेशल कोर्ट्स कौन से एस्टैब्लिश्ड है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक होना चाहिए. ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं बट ऐसे बेसिक पूछते हैं इन टॉपिक में से. देन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यू शुड नो. ऑल दीज थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम सेबी एक्ट दैट यू शुड थारोली प्रिपेयर. यू कैन नोट दिस डाउन. आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो या फिर आप वीडियो को पीपीटी डाउनलोड करके अपना रख सकते हो फॉर योर रेफरेंस. ऑल द वीडियोज एंड ऑल द पीपीटीज आर डाउनलोडेबल. सो टेक डाउनलोड ऑफ दीज पीपीटीज. इनका प्रिंट आउट निकाल कर भी रख सकते हो एक जगह पर एंड रिविजन के वक्त इन टॉपिक्स पर और भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हो. Depositories Act is a very small act, so but many questions are asked from here as well. Chapter 2 is very very important, and yes, it is a very short chapter. Only one section is there in this chapter. यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर भी याद रखो, सेक्शन नंबर, क्योंकि एक ही सेक्शन है. सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सो इसको थारोली प्रिपेयर कर लो. चैप्टर 3 राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द डिपॉजिटरीज, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. पार्टिसिपेंट्स, इशूअर्स एंड बेनिफिशियल ओनर्स. इशूअर्स, बेनिफिशियल ओनर्स, ये चैप्टर ओवरऑल आई वुड से इज़ इम्पॉर्टेंट. तो डिपॉजिटरीज एक्ट में से आपको ये 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड हम इसे एक चैप्टर भी नहीं कह सकते, इसमें एक ही सेक्शन है. तो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रक्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है डिपॉजिटरीज एक्ट का एंड सेबी एक्ट का, जो सिक्योरिटीज़ लॉ में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्ट डू पार्ट है. सो टेक नोट ऑफ इट एंड डू वेल. एंड ऑल्सो iExamB's कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड. कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे. अभी करंटली उसमें कंपनी लॉ का टॉपिक चल रहा है लीगल बी पे. आई होप यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल्स, ऑल iExamB चैनल्स, लीगल बी, एग्री बी, iExamB, ये सारे आप सब्सक्राइब करके रखो. And take benefit of all these videos. Don't miss these videos. Stay updated. हम एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज़ कंपनी लॉ शेड्यूल दैट इज़ शेयर्ड विद यू. लीगल बी पर ये ऑलरेडी चल रहा है. सो टेक द डिटेल्स. आप इस नंबर पे कॉल करके भी डिटेल्स ले सकते हो इस कैंपेन के बारे में भी, या आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कभी भी लिख सकते हो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रिपेयर 50% फास्टर विद iExamB. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी.